What is your take on the movie Sara? See, as everybody told you again, the film is all about guys staying together. Everybody is ambitious and everybody has a dream of becoming big in life. How they become big or what they're doing in the film, for that you have to see the film. And the best I can say about this film is, apart from this film, everybody will relate to it. Me playing Irfan Habib, other guy playing Rajat Huda, be it Jogi, anybody, each and every guy playing in the film would be related to someone or the other in real life. So it's not that film which you go and see and you will feel, oh यार ये hero वाली चीज़ है, मैं यहाँ से कूदूँ, मैं यहाँ से ये करूँ. Everybody would relate to it कि यार मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं से ये पार्ट या ये सिचुएशन कभी ना कभी आई थी. I won't say everybody would be going through it, but कहीं ना कहीं 90% everybody struggles in life. Everybody wants to achieve something in life. Nobody wants to die poor. Nobody wants to be poor. Everybody would think अरे यार मैं रिच हूँ, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर मेरी पोजीशन अच्छी हो. So this is all about the film, and I wish this does well. What kind of portrayal is there of your character on the screen? I am playing an architect. Moradabad से आया हूँ. In real life, I don't know anything about architecture or how to make buildings, क्या करना है, क्या सामान लगते हैं उसमें, कुछ नहीं पता. But still, I used to meet my friends who are architects, जिनके friends के friends हैं, क्योंकि circle जो है आपका most probably people are actors or doing something or the other. So वहाँ पर देखा कैसे ये लोग मैनेज करते हैं. First of all, एक आप अगर फिल्म में देखोगे तो ज़्यादातर मेरे sleeves fold हैं. तो because I was asked to do it by the real architect in life कि हम लोग जब करते हैं क्योंकि वो आना नीचे आपके पेपर पे or something like that. I used to enjoy doing it. एक टाइम था I used to wear formals और formal पहन के अच्छा लगने लगा. I am not a formal guy at all. आप मुझे कभी भी formal कपड़ों में नहीं देखोगे, formal shoes never. But it was fun playing it, and कहीं ना कहीं से अगर बात आई आपके आप एज एन एक्टर, अगेन मैं वही स्टेटमेंट फिर से बोलूँगा, एज एन एक्टर इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, एवरीबॉडी वांट्स टू बी अमिताभ बच्चन हियर और शाहरुख खान. जैसे आर्किटेक्ट है तो उसको भी कहीं ना कहीं से एक बड़ा बिल्डर बनना है. तो वही चीज़ है. मैंने कैरेक्टर को इतना मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ही गुस्सा उसमें, बिकॉज कहीं ना कहीं से इज़ अ फन लविंग गाय जो घर पे होता है, लड़कों के साथ होता है, मस्ती करता है, लड़कियाँ सबसे ज़्यादा छेड़ता भी है. बट जब ऑफिस की बात आती है, अपनी गर्लफ्रेंड की बात आती है, तो ही इज़ वेरी लॉयल टू हिज गर्लफ्रेंड. बाहर लड़कियों को बहुत ताड़ता है, सबसे पहले वही भागेगा देखने के लिए, मस्ती भी काफ़ी करता है. बट व्हेन इट कम्स टू वर्क एंड हिज लाइफ और हिज करियर, so he's very decent towards. So amongst the songs in the film, is there a movie song which is picturized on you and a lady? Yeah. Okay. All the songs. Be it Sarfira, I am in Sarfira. I am in for the title track Sada Adda. I am in Dilli Ki Billi. दोस्ती भी और एक गाना है. In all the songs, आओ साफ करें. Everybody is there in each and every song. What was your learning experience after working with the director Muazzam Baig? Muazzam Baig. Or how was your equation working with the director? When I met Muazzam Baig, the only thing right now for this film are two important characters here right now. One is Muazzam Baig, second is Raj Taru Productions. अगर Muazzam Baig was the first person to have an idea of Sada Adda, Raj Taru executed it the way he wanted it, and we are actors जो हम इसमें घुसे जैसे डायरेक्टर को चाहिए था वैसे हम लोग ने काम किया. Here जब मैं पहली बार Muazzam Baig को मिला, he auditioned for 3 of the different characters, and when he thought okay finally he can do Irfan Habib, I was offered Irfan Habib. And a very intelligent director. कहीं ना कहीं से उनकी भी स्टोरी है. जो फिल्म है वो उन्हीं की लाइफ में, रियल लाइफ में हुआ है, जो उनको चाहिए था जो हम कैरेक्टर्स में वो दिखाएं. कहीं ना कहीं से जैसे मैं इरफान हूँ, उनका एक फ्रेंड था, जैसे रजत हैं उनके एक फ्रेंड उस कैरेक्टर में थे.
तो कहीं ना कहीं से वो बन के पॉलिश कर करके आज ये फिल्म बनी है. एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम वर्किंग विद मौसम बेग, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स. आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट फिल्म. मैं नहीं बोलूँगा कि काफ़ी डायरेक्टरों के साथ काम किया, बट कहीं ना कहीं जो भी आपने इंटरव्यूज़ देखे, कुछ भी देखे, जिस हिसाब से उनकी नरेशन थी फिल्म की, और जैसे जब एग्जीक्यूट करना भी था, द वे ही यूज्ड टू execute it, I love it, and I'm blessed to have a director like Mausim. Sada Adda will be serving as your launching pad in Bollywood. 100% right now, this is my launch pad. Again, if Rajkar was not there, शायद मैं भी नहीं होता, या मैं और कहीं कहीं ठोकर खाते रहता again, because it is not too easy to get into films if you don't have a backup here. बट यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कौन से बैकअप से आए हो, कहाँ से आए हो, आप क्या है. हाँ, टैलेंट है, आप में ये चीज़ है, आपने ये चीज़ पोर्ट्रे करनी है. अगर आप कर पाते हैं तो यू आर देयर इन दिस फिल्म, अदरवाइज यू नॉट देयर इन द फिल्म. ये पहली फिल्म है. आई वॉज ऑफर्ड फिल्म प्रीवियसली बिकॉज आई वॉज सेकेंड रनर अप इन इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार की खोज. उसके बाद ऑफर्स मिली, बट जो ये फिल्म ने दिया है वो शायद वो फिल्म नहीं देती, इसीलिए मैंने वो फिल्में की नहीं. आज अगर देखा जाए तो ये फिल्म मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि एक यहाँ पर प्रेशर भी होता है इंडस्ट्री में, सोलो हीरो और बाकी सारी चीज़ें. सोलो हीरो पे हर चीज़ आपके उस पर बर्डन डाली जाती है, चाहे जो भी हो, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी चीज़ के. यहाँ पर हम लोग सारे कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, जहाँ पर हर एक चीज़, हर एक आदमी ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बांटी हुई हैं. तो आई एम श्योर जो भगवान है, जो ग्रेटेस्ट क्रिएटर है, ही हैज़ गिवन एवरीबडी सम ट्रेड्स इन लाइफ कि यार ये करेगा, ये करेगा. मुझे ये पता है कि मैं जो इरफान हबीब कर सकता था वो रजत नहीं कर सकता था, जो रजत कर सकता हूँ मैं नहीं कर सकता, जो जोगी कर सकता है वो कुणाल नहीं कर सकता, जो कुणाल कर सकता है वो नहीं कर सकता. तो ये एक मेरे हिसाब से ये सारी एक जो टीम है, मेरे लिए ये फिल्म से बेहतर और कोई फिल्म नहीं हो सकती थी. एंड अगेन आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. उसके आगे क्या है ये फिल्म को लेकर, फिल्म इज़ गुड, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, प्रमोशन बहुत अच्छे चल रहे हैं. आप FM सुनो, आप टेलीविज़न देखो, आप कॉलेजेस में जाकर देखिए. वी आर प्रमोटिंग द फिल्म दैट वे कि कहीं ना कहीं से अब लोगों को पता है कि साडा अड्डा क्या, और जब ये आ रही है आई एम श्योर देखने के बाद लोगों को भी पसंद आएगी. और अगर लोगों को पसंद आएगी, लोगों को हमारा कैरेक्टर पसंद आएगा, तो कहीं ना कहीं से यहीं से शुरुआत होगी, और कहाँ तक पहुँचा जाएगा वो डिपेंड्स अपॉन गॉड.